Good morning friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to start our chapter acid, base and salt. Now today we discuss about the neutralization. In the previous lecture we studied about the characteristics of acid, base and salt. Now we know that when acid react with base, then it is neutralized and gives salt and water. Now we have to see here the reaction between the acid and base is known as the neutralization. First off, I ask a question which is called the neutralization. That means the reaction between acid and base is called the neutralization. Salt and water are produced in the process with the elevation of heat. In the previous lecture, I explained you when acid react with base, then it gives salt and water. Means this process is known as the neutralization. Which process is not called the neutralization? When acid react with base, this process is known as neutralization and it gives salt and water. We have to see here acid plus base, it gives salt and water. It is evaluated. We take a example, HCl hydrochloric acid, HCl react with NaOH, then it gives NaCl plus water. सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH क्या है, बेज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोथ आर HCl is strong acid, NaOH is strong base, both react, then it gives the common salt and water. This process is the known as neutralization. Now we have to see here neutralization in our everyday life. Neutralization in our everyday life. How? First off, indigestion. Indigestion कैसा होता है दोस्तों? We know that there are HCl present in our stomach. हमारे stomach में HCl present है. Their pH is 2 or 3, means it is a more acidic. Okay, but our stomach have a mucus. It protect the wall of stomach from the HCl. जो स्टोमक की वॉल है उसको HCl से प्रोटेक्ट कौन करता है? मकस करता है. तो our stomach contains the hydrochloric acid. It helps to digest food and kill bacteria. Help to the digest food and kills the bacteria. Have learned in chapter 2 what too much of acid in the stomach causes the indigestion. जब स्टोमक में एसिड का मात्रा ज़्यादा हो जाती है, मेजरमेंट ज़्यादा हो जाता है, देन क्या होता है? इंडाइजेशन होता है. तो समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल. वी हैव टू नो डेट एज ए एसिडिटी. जब भी स्टोमक में क्या होती है? एसिडिटी गैस प्रॉब्लम होता है. दैट मीन्स स्टोमक में क्या हुआ? एसिड का इफेक्ट ज़्यादा हो गया. इट प्रोड्यूस मच HCl, मीन्स मच एसिड. Sometimes indigestion is painful. To receive indigestion, we take an antacid. तो इंडाइजेशन में हम क्या लेते हैं? एंटाएसिड लेते हैं. लाइक दैट इनो. इनो क्या है? एंटाएसिड है. सच एज ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स इट इज MgOH twice. MgOH twice. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज द milk of magnesia. So I ask you a question, which is known as the milk of magnesia? That answer is MgOH twice, magnesium hydroxide, which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of the excessive acid. मीन्स जब आपको स्टोमक में एसिडिटी होती है, गैस प्रॉब्लम होती है, बर्न होता है स्टोमक में, तो आपको डॉक्टर क्या देता है? एंटाएसिड देता है. एंटाएसिड में क्या देता है आपको? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया देता है. उसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. जनरल नेम इज मिल्क ऑफ मैग्नेशिया. नाउ
रेगुलर लाइफ में आपको आंट वाइट करती है। आंट में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, मीन्स मिथेनोइक एसिड आता है। बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल, मिथेनोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। ओके, तो वी हैव टू सीन हियर व्हेन एन आंट वाइट्स, जो रेड आंट से वाइट्स करती है, इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड। मैंने बताया ना आपको कि जो आंट होती है रेड आंट, उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। इट इज आल्सो नोन एज मिथेनोइक एसिड। इनटू द स्किन द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। ठीक है, आपको रेड आंट करती है, मीन्स वो वाइट किया उसने आपको, तो मतलब उसने लिक्विड रिलीज किया, एसिडिक जो लिक्विड है उसको रिलीज किया। ठीक है, तो आपको उससे जो उसमें क्या वर्निंग होती है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हो? उस पर बेकिंग सोडा को क्या करते हो? रब करते हो, रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलेमाइन सॉल्यूशन। और क्या यूज करते हो? कैलेमाइन सॉल्यूशन। तो रेड आंट करती है, वाइट करती है, तो उससे आप रिलैक्स पाने के लिए किसका यूज करते हो? तो बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन सॉल्यूशन वी कैन यूज to protect white of red ant, which contains zinc carbonate, which contains also zinc carbonate. Now we have to see soil treatment. We have to see soil treatment. Excessive of the chemical fertilizers makes the soil acidic. जो chemical fertilizers हम यूज करते हैं, ठीक है, लाइक दैट यूरिया, पोटास, ठीक है, उससे क्या सोइल कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सोइल इज आइदर टू एसिडिक। जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं होते जब सोइल मच एसिडिक होती है और मच टू बेसिक। ठीक है, तो सोइल का जो पीएच है वो कितना होना चाहिए? 6.5 to 7.8 होना चाहिए। ठीक है, व्हेन द सोइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विथ बेज। अगर सोइल क्या है? एसिडिक है, तो उसको ट्रीट किससे करते हैं? बेस से करते हैं। ठीक है, लाइक क्विक लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड और सिलेक्ट लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ द सोइल इज बेसिक देन ऑर्गेनिक मैटर compost. Organic matter compost is the added to it. Organic matter is release the acids which neutralize the basic nature of the soil. तो soil में क्या हम लोग मिक्स करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर वो बेसिक है तो उसमें क्या डालोगे आप? ऑर्गेनिक मैटर डालोगे, जिससे वो क्या उसको एसिडिक बनाएगी। कैसा बनाएगी? एसिडिक बनाएगी। ओके, तो बी यूज द न्यूट्रलाइजेशन in the normal life, like that the acidity in stomach, white of red ant and the acidic medium of the soil we have to seen here. Now we have to seen factory wastes. The factory wastes of many factories contain acids. जो फैक्ट्री में से जो वेस्ट निकलता है, तो मैन्युफैक्चरिंग वो क्या होता है? लाइक दैट एसिड्स होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, उसको वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाता है, लाइक दैट रिवर्स, कैनाल्स। द एसिड्स विल किल द फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो एसिड है, उसकी वजह से फिश और अदर एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं? किल्ड हो जाते हैं। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग द बेसिक सब्सटेंस। जो फैक्ट्री वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए पहले, किससे? बेसिक कंपोनेंट से, उसके बाद उसको रिलीज करना चाहिए कैनाल और रिवर में। So it is a very difficult problem in our surrounding areas. Today we have to see indigestion, and due to the acidity or acidic soil and white of red ant and factory waste. If anybody have any query regarding these topics due to the property of the acid or neutralization, then ask me on comment box. Have a nice day. In the next lecture we started our new chapter. Have a nice day.